Hosea, Malachi chapter 3, chapter 4 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हमारी सहायता करो परमेश्वर के आत्मा कि हम आपके सहायता से आज्ञा पालन में बढ़ते जाएं। अनुग्रह करो कि हमारी समझ में परमेश्वर की बातें हम लेकर सफलता और संपन्नता का जीवन जी सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Chapter 3 Messenger, Majesty and Grace of Christ, Rebellion, Sacrilege and Infidelity of the people, Promise of blessing to them that fear God. First verse. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap, and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in former years. And I will come near to you to judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, and against false swearers, and against those that oppress the hireling in his wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, saith the Lord of hosts. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet ye say, what have we spoken so much against thee? Ye have said, it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? And now we call the proud happy. Yea, they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even delivered. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Chapter 4 God's judgment on the wicked.
and his blessing on the good. He tells of Elijah's coming and of his. First verse, for behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall, and ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Thank you Jesus, थैंक यू होली स्पिरिट। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से मलाकी 3-4 अध्याय, आखिरी अध्याय है इस साल का। हम पढ़ेंगे 3 अध्याय पहले वचन से। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा ही की को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दशमांश की चोरी 6 वचन से आगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं,
इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने में भी बच गए हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दुराचारी सफल बन गए और परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं, यानी उनको परमेश्वर ने पनिशमेंट नहीं दिया। क्या बात करेंगे। ओके, दया की प्रतिज्ञा 16 वचन से आगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया! ये कितना ही लुभावना है ना, कितना प्यारा है ये हमारे लिए है। हालेलुया! देखो, जहाँ परमेश्वर की परीक्षा करके भी लोग अभी तक पनिशमेंट नहीं पाए हैं, तो उनकी दुराचार करना सफल बनता जाता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर उनकी तरफ से ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन विश्वास करने वाले ठोकर खाते हैं। ओके, वो विश्वास करने वाले सोचते हैं क्या फ़ायदा है परमेश्वर के पीछे जाने से। हाँ, ये लोग देखो दुराचार कर रहे और इतना सफल हो रहे, और फिर बाद में उनकी वो परमेश्वर के ठट्ठों में उड़ाते, परीक्षा करते परमेश्वर के, और फिर भी उनको पनिशमेंट नहीं होता है। और हम लोग ने थोड़ा कुछ किया तो परमेश्वर हमको पनिश करता है, ऐसा उनका समझ हो गया है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का पनिशमेंट स्लो क्यों है? क्योंकि अभी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्रूस का बलिदान देकर प्रेम को बहाया है, न्याय को नहीं बहाया, प्रेम को बहाया है। हालेलुया! तो न्याय तो ठहरा हुआ है, अभी तक उसका पनिशमेंट आना बाकी है, ठीक है। अब प्रेम का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। ओके, परमेश्वर का प्रेम दिखाया। देखो, जब आप किसी को भी सुधारना चाहते हैं तो पहले आप प्रेम की भाषा करके देखते हैं, है ना। समझाने की भाषा करके देखते हैं, समझे तो ठीक है, अगर नहीं समझता है फिर आपको कड़ा स्टेप उठाना पड़ता है ना। तो वही तरह से परमेश्वर का अभी का समय जो चल रहा है वो प्रेम भरा समय है। हम मसीह लोग दुष्टता करने वालों को भी प्रेम जताते हैं, हम दुराचारियों को भी माफ कर देते हैं। हाँ, परमेश्वर की परीक्षा करने वालों को परमेश्वर भी नज़रअंदाज कर देता है, ध्यान नहीं देता है। ओके, तो इसका मतलब क्या परमेश्वर उनको सपोर्ट कर रहा है? नहीं। ओके, फिर भी वो क्या करता है? धर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता है, अधर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता है। धर्मियों के ऊपर भी सूरज उगता है, अधर्मियों के ऊपर भी सूरज उगता है। तो किसी को कुछ कमी नहीं रखा है। अगर अधर्मी फिर भी अगर परमेश्वर को पुकारता है सहायता के लिए, परमेश्वर सहायता कर देता है। ओके, लेकिन दया के आधार से। अब परमेश्वर का प्रेम जहाँ एंड होने वाला है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर एंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद पनिशमेंट का समय शुरू हो जाएगा। ओके, वो एरिया ऑफ लाइफ रहेगा कि वहाँ मसीही लोग देखेंगे कि जो इस प्रकार के दुराचार कर रहे, जो इस प्रकार के परमेश्वर के परीक्षा करने वाले लोग हैं, कैसे हालातों में उनकी ऐसी हाँ तौबा तौबा हो चुकी है। ओके, और ऐसा लिखा है कि जिसके बारे में उनको अभी तक स्मरण नहीं है कैसा वो समय रहने वाला है। वो अपने दिमाग से अभी तक उस पिक्चर को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर ने खोल के दिखाया नहीं है किसी को कि वो समय कैसा रहने वाला है। ओके, तो अभी तक लोग भ्रम में है, उनको लगता है अभी तक हम सहन कर चुके हैं, कितना क्या क्या हो चुका, हमने सहन कर लिया है, अब इसके बाद भी क्या है, वो भी सहन कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अभी तक उनके जहन को टच नहीं किया है, ऐसी बातें वो पनिशमेंट के दौरान में होने वाली है। समझ में आया? और अब हम लोगों के लिए देखिए क्या लिखा है परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले, दया की प्रतिज्ञा 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनमें ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे।
तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। अभी आपको भेद क्यों नहीं पहचानने आता है? क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है ना। परमेश्वर क्रोध में अभी एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान का दौर अभी प्रेम दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम उंडेल रहा है। ठीक है, अब परमेश्वर का प्रेम उंडेला जा रहा है। अगर समझो किसी को बिलीवर्स बनाना है तो भी लोग हथियार लेके नहीं जाते हैं, है ना, कि देखो अगर तुम बिलीवर नहीं बने तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हथियार नहीं लेकर जाते हैं, है ना। उनको प्यार से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। अगर नहीं मानते हैं फिर हम प्रार्थना करते हैं, अगर फिर भी नहीं मानते तो उनको सच्चाई दिखा देते हैं। देखो ये सच्चाई है, वचन में ऐसा ऐसा लिखा है ना। तो जितना हो सके उतना हम उनको नरमाई से प्रभु के बारे में बता रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का एक समय ऐसा आएगा जब प्रेम खत्म, मतलब यीशु मसीह दूसरे आगमन में प्रकट हो गया और मसीह लोगों को यहाँ से उठा लिया, बस वहाँ से लेकर जो अंधेर शुरू होने वाला है, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम भेद समझ जाओगे कि धर्मी का आनंद कैसा है और दुष्ट कैसा फिसल चुका है। ओके, अपनी जगह से खत्म होता जा रहा है। ओके, उसका सारा किया कराया कैसे उसके ऊपर उलटता जा रहा है। ओके, आपको दिखाई देगा वो। इसके लिए आपको वो बातों की तरफ नहीं देखना है और कभी ऐसे कंप्लेन नहीं करना है कि हम धर्मी होके फ़ायदा क्या है, सेवा करके फ़ायदा क्या है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम का समय चल रहा है, इसके लिए आपको दुष्ट को सहना पड़ रहा है अभी के समय में। प्रभु के दिन का आगमन, 4 अध्याय पहले वचन से, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे को की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा को की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने इस सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ओके, देखा, तो परमेश्वर का समय को समझना हमारी जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमें फिट एंड फिक्स करो, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 5 चैप्टर 24 वर्स से 32 वर्स, नहमिया 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 24 वचन से 32 वचन। नहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय। हम फैसला किए हैं अकेले में बैठकर पढ़ना, व्यक्तिगत रूप में पढ़ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने अंदरूनी मनुष्य के जांच पड़ताल पवित्र आत्मा को करने दें, ताकि हम जैसा होना चाहिए परमेश्वर हमें बना सके। आप अपनी तरह से पढ़ सकते हैं, जैसा आपको चाहिए, अपने मर्जी से आप फैसला लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। लेकिन एक ही बात निश्चित रखना है कि पवित्र आत्मा हमको वचन सिखाना है, परमेश्वर का आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करो, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।